everyone, welcome to my channel Ekansh. Hope you all are good. Class 7, we are doing Emergence of Islam and its arrival in India. Today we will start from page number 7. We have read about Muhammad Ghaznavi and Al-Burani's observation of India in previous video. In this video we will read about Battle of Tehran which took place in the year 1191 and 1192. The two kings between whom this war took place were Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. So, first of all, we know about them. Muhammad Ghori. Prior to Muhammad Ghori, Mahmud Ghaznavi had invaded India and looted huge amount of wealth. As has already been said above, Muhammad Ghaznavi never wanted to establish his empire in India. But the Turk king who came to really rule over India was Muhammad Ghori. Muhammad Ghori came from a place named Gaur in Afghanistan. There he was indulged in war with other Turk kings. मोहम्मद गौरी से पहले महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था और भारी मात्रा में धन लूटा था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महमूद गजनवी कभी भी भारत में अपना एम्पायर स्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुर्क किंग जो वास्तव में इंडिया में रूल करने के लिए आए थे वो थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गौर जगह से आए थे, केम फ्रॉम अ प्लेस नेम्ड गौर। वहां वो अन्य तुर्क किंग के साथ वार में इंडल्ज थे। इंडल्ज मतलब लगे रहते थे, वार करते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे। Both the Turk kings wanted to develop their own supremacy in Gaur. Finally, Muhammad Ghori realized the power of the other Turk kings and concluded it better to establish his empire elsewhere. दोनों टर्क किंग्स गौर में अपनी सुपरमेसी डेवलप करना चाहते थे। सुपरमेसी मतलब अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। फाइनली मोहम्मद गौरी को अदर टर्क किंग्स की पावर रियलाइज हुई। उन्हें पता लगा कि वो तो बहुत पावरफुल है एंड कंक्लूडेड इट बेटर टू एस्टैब्लिश हिज एम्पायर एल्सवेयर। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड किया कि उन्हें अपना एम्पायर कहीं और एस्टैब्लिश करना चाहिए। In the beginning, Muhammad Ghori invaded Multan city of Punjab and captured it. Thereafter, he marched towards Gujarat through the desert of Rajasthan, where he was defeated by the King Bhim of Chalukya dynasty. However, he never lost his courage. In the next attempt, he thought of capturing Punjab first. By the year 1190, whole of Punjab had come under his possession and he started ruling from Bhatinda. मोहम्मद गौरी जब अफगानिस्तान से इंडिया आए तो शुरुआत में उन्होंने पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। देयर आफ्टर उसके बाद उन्होंने राजस्थान के डेजर्ट से होते हुए गुजरात की ओर प्रस्थान किया। मार्च टूवर्ड्स गुजरात यानी गुजरात की तरफ जाना, गुजरात की तरफ प्रस्थान करना, जहां उन्हें चालुक्य वंश के राजा, डायनेस्टी वंश कहलाता है, भीम ने हराया था। हालांकि उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। अपने अगले प्रयास में उन्होंने पहले पंजाब पर कब्जा करने के बारे में सोचा। 1190 तक पूरा पंजाब उनके कब्जे में आ गया था और उन्होंने भटिंडा से शासन करना शुरू कर दिया। Now we will read about Prithviraj Chauhan. In those days,
when Muhammad Ghori was invading India, the kings of Chauhan dynasty of Ajmer were also busy in the spread of their empire. Like Turk kings, the Rajput kings also used to fight against each other. Prithvi Raj Chauhan wanted to engage in battle against Raja Zechan, but he was a very strong ruler. उन दिनों जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहे थे, तब अजमेर के चौहान डायनेस्टी के राजा भी अपने एम्पायर को स्प्रेड करने में बिजी थे। टोक किंग्स की तरह ही राजपूत किंग्स भी आपस में लड़ते थे। पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते थे, लेकिन वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे। Hence, Prithviraj Chauhan advanced towards Gujarat. The ruler of Gujarat, the king Bhim, defeated Prithviraj Chauhan. Thereafter, Prithviraj returned back to Delhi and started thinking in terms of spreading his empire towards Punjab, where Muhammad Ghori ruled. Under the circumstances, the war between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori became inevitable. इसलिए पृथ्वीराज चौहान गुजरात की तरफ बढ़े। गुजरात के रूलर राजा भीम ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान वापस दिल्ली लौट आए और पंजाब की ओर अपना साम्राज्य फैलाने के बारे में सोचने लगे, जहां मोहम्मद गौरी रूल कर रहे थे। पंजाब जीतने के बाद मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के रूलर पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी थी। बठिंडा पर मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी परिस्थितियों में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध अपरिहार्य हो गया था, यानी अनिवार्य हो गया था। Inevitable means अनिवार्य या अपरिहार्य। The Battle of Tarain 1191. Knowing that Prithviraj Chauhan was preparing for war, even Muhammad Ghori marched towards Punjab. The armies of both the kings became engaged in war in the year 1191 at a place named Tehran. In this war, Muhammad Ghori had to suffer heavy defeat. Thus, Punjab was annexed by Prithviraj Chauhan in his own kingdom. Meanwhile, Muhammad Ghori remained silent for a year. However, he kept on increasing the strength of his army. Battle of Tarain means Tarain का युद्ध 1191। यह जानकर कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध की तैयारी कर रहे थे, मोहम्मद गौरी ने भी पंजाब की तरफ रुख किया। दोनों ही राजाओं की सेनाएं हरियाणा के करनाल के पास तराइन नामक जगह पर मिले, जहां पर ईयर 1191 में दोनों की सेनाओं में युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को भारी हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार पंजाब को पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य में वापस ले लिया। इस बीच मोहम्मद गौरी 1 साल तक चुप रहा, मीन्स उसने कोई युद्ध नहीं किया, हालांकि वह अपनी सेना की ताकत बढ़ाता रहा। In the year 1192, Muhammad Ghori invaded Prithviraj Chauhan. Prithviraj Chauhan demanded help from the neighboring kings. There were more than 3 lakh soldiers in the army of Prithviraj Chauhan. On the other side, the army of Muhammad Ghori consisted of only 1,20,000 soldiers. However, he had very powerful and agile cavalry.
1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर फिर से आक्रमण किया। एक बार फिर तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने पड़ोसी राजाओं से मदद मांगी। उनकी सेना में 3 लाख से अधिक सोल्जर्स थे। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की सेना में केवल 1,20,000 सैनिक थे, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थे और उनके पास चुस्त घुड़सवार सेना भी थी। एजाइल कैवलरी मीन्स चुस्त घुड़सवार सेना। When the war started, the soldiers of Prithviraj Chauhan riding on elephants started smoothing the soldiers of Muhammad Ghauri. But the cavalry of Muhammad Ghauri surrounded the army of Prithviraj Chauhan from 3 directions and fiercely started attacking with the arrows. The wounded elephants could not find any way to escape. Finally, they turned backwards. Now the army of Prithviraj Chauhan had become surrounded from all the directions. Think and write what would have been the fate of the army of Prithviraj Chauhan, whether under these circumstances he could have won the battle. जब युद्ध शुरू हुआ तो हाथियों पर सवार पृथ्वीराज चौहान के सोल्जर्स ने मोहम्मद गौरी के सोल्जर्स को खदेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मोहम्मद गौरी की कैवलरी यानी घुड़सवार सेना ने तीनों डायरेक्शन से पृथ्वीराज चौहान की सेना को घेर लिया और तीरों से जमकर हमला करना शुरू कर दिया एंड फियर्सली स्टार्टेड अटैकिंग विद द एरोज। घायल हाथियों को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। फाइनली वे पीछे मुड़ गए। अब पृथ्वीराज चौहान की सेना सभी दिशाओं से घिर गई थी। अब आपको क्या लगता है, इस सर्कमटेंसेस में क्या वह बैटल जीते होंगे? नहीं, इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयचंद को भी पराजित किया। मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर, बयाना, बिहार और वेस्ट बंगाल पर विजय हासिल की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय यानी ईयर 1206 तक लगभग संपूर्ण नॉर्थ इंडिया उनके अधीन आ गया था। Thanks for watching. See you in the next video.